Takabam, Agampa, Hindi Logan, Namaste. And Beng Tangor, thank you so much for the kind words. Silok Aniditak Doman Dobo. Sima organize mana ngoge abeng dalog ngoge upaga atopati kaku ngo kedia ko bomdung. Dr. Tangor Tapak bega erang bega bermayana abu yana ngoga ane ako ngok ane pe idung puraking ngoga pai taing ke erang dalok silok holog ana 37 West holog senior leaders kedar ngoga party log office bearers kedar dalok abid ana kedar ngoga berma berok kedar Silok holok pebos solo alang ko mairupa medo and sim pebos sim iwan am lagape ko Dr. Tangor Tapak mairupa koido kana masi doman poboko ngajong ko nolu me Dr. Tangor Tapak ke lagam lumi nolu kenne to kendong bum idokom party solo bagi status inkuala dem nol ken penam dorkar no BJP solo Dr. Tangor Tapak ke distinction ko kadung Dai dong ingoga abu si patom BJP solo Arunachal BJP history lo dui bar ko president ine they come continuously be state president dui bar ko itu dale hiloka tarik lo be ngologa state loga be core committee loga member pa ko mido core group umdong the ngologa BJP hologa highest policy decision making body edong dalo be member dalok telo be pag apana Arunachal Pradesh holog election idak tu holog election committee lokong be member yang big position yang holog the roles BJP so was a important dong be BJP holog state log asset ko pe ngolu party be mani dong ina me ngoga tanna me be kom hinjing 37 holog arope kom ticket em kokiyam dong Kobadong or capable dong experience the kadung kerapa kom dui bar ko MLA mitung de kom BJP lok opposition lok hala bit jikitung inama demi rongam minister pate dungkito and hupak government no advisor to chief minister pate idung dete belum cabinet rank bitung cabinet rank binam de kom ekta highly prestigious ati tikera bum party Ayasila bimelo nolu takam kom strongly support toka kapelila BJP government runga state ho aiko BJP government runga center bergo maiko BJP lo nolu yemelo biar BJP MLA banai melo dalo development kom bozaru pa ayai 37 hi last time kom BJP ticket official candidate BJP ticket harai to as a general secretary BJP lok general secretary Arunachal holok inam laga nolum appeal dong dem pa imo kuma paga ticket panam dem nol elect langka BJP lo yemilo moko Narendra Modi ka ayang apuyen Pema Khandu ka ayang apuyen na ene pe kom ngoga Beng Tangor be Pema Khandu ka advisor pa yedong dem closeness ko kabo hidong punya nya yam nyampo kisana mo arape ko hologa BJP MLA ko kamelo BJP chief minister re upag edit korin developmental schemes biduna dampam kom double ya apa biaya nama ko ai dengoga itu BJP general secretary nol appeal nama dalok ngoda keng agesi hining BJP loga MP lok tiketam kokidak Arunachal parliamentary eastern constituency holok kam isora ayala tiketam bimelo nol bulokom takama ngom support langka BJP lo vote bilangka amlango nolong kumdung 37 constituency hima dal holok ami keram tu ngo kerango pakai kendum ngoga Delhi bal pori dal lok omak apang ngoni ango pela ngolo anyar da kwai dalok kerapa ngok abukom holo dula rani holo dula ngoko rani ho dutwa ngo yumang kesapa upakom mupas idung na ngok agi holok ami keram ar him jaga him ngok closeness ko karam ngoga kopa dulu dam rani solo electricity kamangai dal ke tape kamangai not kualo asiam jor bay ngodem yumang ke sapa mupas dong you know from those days
dalok din dalok kila gok rani dolong him dalok ka 37 constitution connection kadum ngok erang tu dine dulu ngok lenti page rani hikom ngok abu yai tanu meje hol dutuai nyokai oyan be kadung rayang be kadung de upaga hi ngok ane page dum babeng tangor ke berma bu yane ila deep rooted connection ngok 37 constitution so kadum ina man again dolong takabo epilong ko holok 37 holok hinjing dol MLM kom BJP kam bonai langka MPM kom bonai langka dia mimelo Narendra Modi ke government no ayang pai Pema Khandu ke ayang pai BJP prime minister lok ayang pai BJP chief minister lok ayang pai aru apana longelo Arunachal Pradesh patombang India hokom BJP government rungai moko ai kude dia miwom dola nol apem gaji to ka em gadola ngoga hilok agomem holo luindo agam pe नमस्कार, सियांग न्यूज़ लाइव में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अभी हमारे साथ हैं श्री नालोंग मुजा जी, जो कि है जनरल सेक्रेटरी स्टेट बीजेपी अरुणाचल प्रदेश। तो सर, कुछ दिन पहले पांगंग विलेज में आपका डिक्लेरेशन प्रोग्राम कुछ था, तो हमें थोड़ा सा विस्तार में बताइए ना उसके बारे में। पांगंग में मैं वहाँ अपना बस्ती से गुमिन होइन से ब्लेसिंग लेने गया था। जैसे आपको पता है इस बार अरुणाचल ईस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का टिकट मैं भी मांग रहा हूँ। मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते टिकट मांगना मेरा अधिकार है, इसलिए मैं इस बार टिकट मांग रहा हूँ। अगर मेरे पार्टी के सीनियर्स मुझे टिकट देंगे तो मैं ज़रूर इस बार एमपी चुनाव में लड़ूंगा। तो सर, श्योरिटी कितना है, टिकट आपका होगा कि नहीं? देखिए, बीजेपी में टिकट देने का एक सिस्टम होता है और हमारे यहाँ सब डिसीजन कलेक्टिव होता है, तो मैं भी मांग रहा हूँ और बाकी हमारे बीजेपी के और कार्यकर्ता है जो टिकट को मांग रहे हैं, तो मांगना सभी का अधिकार है। और जहाँ तक श्योरिटी का बारे वो हाई कमान हमारे बीजेपी का जो सीनियर्स है, हमारा टिकट कमेटी है स्टेट में, फिर उसके बाद में हमारे नेशनल लेवल में भी हमारा ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वो लोग डिसाइड करेंगे। और सभी का मेरे ख्याल में टिकट मिलने का जो सभी का आशा तो रहता ही है, और कितना श्योरिटी नहीं है वो तो मैं कैसे बोलूँगा, वो तो हमारे पार्टी डिसाइड करेंगे। पार्टी जो भी निर्णय लेंगे वो तो मेरे लिए उचित है। मांगना मेरा अधिकार है और टिकट देगा तो चुनाव तो मैं जरूर लड़ूंगा, और मैं विश्वास करता हूँ अगर टिकट मुझे भी इस बार देंगे तो अरुणाचल प्रदेश इन ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जो जनता है वो समर्थन देंगे। तो सर, ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि जो एमपी का जो फंड होता है ना, एमपी जैसे एमएलए लेट फंड है, एमपी का भी फंड आता है, तो अरुणाचल में इसका कई प्रकार से कहे तो इसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो अगर आप एमपी बन जाते हो, अगर आपको वही फंड तो मिलेगा ही, तो आप उस फंड को कहाँ पे यूटिलाइज करोगे? देखिए, अरुणाचल प्रदेश का जो एमपी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत बड़ा है। हमारा देश में बाकी जगह में भी एमपी का कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, लेकिन वहाँ का जो जोग्राफिकल जो साइज है वो छोटा होता है। हमारा यहाँ बड़ा साइज है लेकिन पॉपुलेशन कम है। आपको जानकर इंटरेस्टिंग लगेगा कि हमारा अरुणाचल ईस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नागालैंड स्टेट का 2 साइज है। इट इज़ ऑलमोस्ट 40,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ऐसे में क्या होता है, जो एमपी फंड जो आता है एक्चुअली वो बहुत ही कम हो जाता है, बिकॉज जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा है। और 27 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे यहाँ, तो 27 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जब उसको यूज़ करने जाते हैं, द फंड इज़ एक्चुअली रियली नॉट सफिशिएंट। हाउएवर, मैं समझता हूँ कि जो एमपी लेड जो फंड आते हैं उसका 27 कॉन्स्टिट्यूंसी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना है। इसीलिए मेरा तो प्लान ये रहेगा कि जो भी एमपी फंड आता है इट विल बी डिवाइडेड इन बाय 27 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज, और वहाँ पर जिस तरह से एमएलएस लोग लोकल हमारे ग्राम पंचायत के मेंबर लोग प्रायोरिटी वाइज उचित समझता है, उसी तरह से लोग एमपी लेड को यूज़ कर सकते हैं। सर, ऐसे आप तो यूथ आइकॉन भी है यहाँ पे अभी अरुणाचल में, तो यूथ को लेके आपका क्या ये है विचार है अरुणाचल की यूथ को लेके? सबसे पहले मैं ये यूथ को संदेश देना चाहूँगा, युवा शक्ति देश का शक्ति है। इसलिए युवाओं को अपना देश का सेवा में लग जाना है, और हमारे युवाओं के मन में देश सेवा का एक भावना रहना है। उसको कहते हुए मैं यह कहूँगा, आज के दौर में अगर आप पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करेंगे तो बीजेपी सरकार ही सेंटर में भी आएंगे और बीजेपी सरकार ही प्रदेश में भी वापस आएंगे। और आप लोग सब देखे हैं कि 10 साल का जो कार्यकाल था मोदी जी का और पेमा खांडू जी का जो 8 साल का जो कार्यकाल था, इसमें अरुणाचल प्रदेश का अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हुआ है। तो
इसे कहते मैं युवा को ये भी संदेश देना चाहूँ कि आने वाले दिनों में भी युवा लोग बीजेपी को भरपूर सपोर्ट करना है, स्ट्रांगली सपोर्ट करना है। और बीजेपी ऐसा पार्टी है जो युवाओं को प्राथमिकता देता है और युवाओं के लिए कई सारा स्कीम्स, कई सारा हमने जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हम युवाओं के हित के लिए बनाया है। और आगे भी मोदी जी का जो सरकार होगा, पेमा खंडू जी का सरकार होगा, युवाओं के हित के लिए ही काम करेंगे। इट इज सो therefore it is so natural that the youth should support BJP and you should join hands in making India a विश्व गुरु। मेरा संदेश यही है सभी युवाओं। सर ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा बीजेपी को लेके। सर बीजेपी कई सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जहाँ पे मेंबरशिप मिलता है, लेकिन कोई लोग ऐसे हैं जो 20-30 साल 40 साल रह के भी बीजेपी के अपर टॉप लेयर में नहीं पहुँच पाते, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा बीजेपी इज अ मेरिट बेस्ड पार्टी और बीजेपी में ऐसा है, दो चीज़ों को हम लोग ध्यान देते हैं। एक है कि पार्टी में जो सक्रिय है, डेडिकेटेड है, और पार्टी में जो लंबे समय से हमारे साथ जुड़े, उनके लिए हमारा पार्टी में अलग सा उनका एक प्रेस्टीज रहता है, इज्जत रहता है, उसको हम ऑनर करते हैं। और जहाँ तक फंक्शनरीज का बात होता है, जैसे फंक्शन, जैसे कि आप पदाधिकारियों का बात होता है, हमारा यहाँ में संगठन का जो डिसीजन है वो हर किसी का क्षमता, हुनर या कैपेबिलिटी, क्वालिटी और उसका सूटेबिलिटी को देखते हुए हम पद देते हैं, मतलब ऑफिस बेयर्स बनाते हैं। तो उसी हिसाब से हमारा यहाँ में जो कलेक्टिव डिसीजन लेता है हम लोग सीनियर्स लोग, तो उसी हिसाब से किसी का प्रमोशन होता है और किसी का क्या प्लेसमेंट होता है। तो इट्स अ मेरिट बेस्ड पार्टी, इट्स अ cadre based party, so therefore all the decisions are collective. So or fit again it depends on the particular quality and suitability of a person को उसको कौन सा पद में दिया जाए, कौन सा क्षेत्र में भेजा जाए, कौन सा उसको इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भेजना है, ऑर्गेनाइजेशनल इसमें काम के लिए रखना है, वो पार्टी तय करता है। और वो हमारे जो हमसे जो सीनियर्स होता है, हमारे जो नेशनल लेवल के जो लीडर्स होते हैं, स्टेट लेवल लीडर्स, वही तय करते हैं बेस्ड ऑन द सुइटेबिलिटी, बेस्ड ऑन द क्वालिटी, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कार्यकर्ता। बट द थिंग इज दैट बीजेपी इट्स अ वेरी फेयर एंड इट्स अ वेरी सबको मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाला एक पार्टी है, एंड सबके साथ न्याय करता है।